have joined. Hi. Uh, good evening, Rajiv. So now you are fine? I am fine, ma'am. I was ill till Saturday. Now I'm fine. Okay, so I am hoping now you will continue your session without taking any leave. I'm actually just give me. I have joined from two places, from phone and laptop as well. Just let me log out from phone. Actually, Rajiv, your voice is breaking, so I am not able Can you to. hear me now? Can you hear me? Yeah, but your voice is breaking. Ma'am, yeah. I think let me switch on the AC so that we can. Okay, so Rajiv, have you ever practiced some assignments which I have given you earlier? Hello. Can you hear me? Yes, yes, Rajiv. Okay. Yes, ma'am. We can go forward with the class, ma'am. Sorry for whatever happened in the last week. I'm sorry for that. Okay, so I just asking you a simple question that have you tried to assignment which I have given you in the No, earlier. no, Hello. no, ma'am, because since I was ill, I have been ill for almost 2 weeks now. So no, sorry for that, ma'am. But yes, today whatever you teach me today, I will rephrase everything. Whatever you have taught me today, I will do that everything but on tomorrow, and then in the next class I'll be prepared. That's what I can promise. Okay, so we will start our session with the same project which we will continue, which we will doing in the previous session. Okay, so just I'm going to share my screen. Okay. Okay, so that we were building a simple portfolio using the HTML, CSS, and the normal HTML and CSS. Okay, Yes. Yes. so why we using this? Because uh, using these elements, you will know that how these elements will work into a simple project. Okay, so in the previous session, we will build a simple normal layout of our portfolio where we will see a header for the about section, Uh-huh. and the next we yeah, for the next we have to be continuing this. Okay, So, so let me just. may I say something? In the last class, you had taught me how to prepare a portfolio. I remember that, and you had asked me Yes, to practice that because of my illness, I couldn't do that. So yes, I remember those things. But you decide क्या करना है अभी कैसे करना है. ओके सो आज हम क्या करेंगे आज टुडे वी विल कंटिन्यू सेम लेक्चर ओके सो इसके आगे का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रह गया था हम वही देखेंगे Okay. तो मेनली जो था हमने अच्छा अपने जो मैम मैम अबाउट मैम सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू. मैम जो भी आपने मुझे चीज़ें सिखाई थी, नाउ सिंस दिस इज न्यू फॉर मी, तो मैंने जो कोडिंग छोटा मोटा आपने ब्लैक स्क्रीन पे सिखाया था और आपने विजुअल स्टूडियो पे करने को बोला था, तो मैंने एक बार दो तीन बार करने की कोशिश की थी. मैंने अपने कुछ दोस्तों से जो आईटी में है, एक एचसीएल में है, एक एक्सेंचर में है, मैंने उनसे पूछा भी कि मतलब इसमें कैसे, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस, कैसे क्या कर सकते हैं. तो चूंकि दे आर प्रोफेशनल्स, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है, तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ क्या कुछ ऐसे नोट्स हैं या कोई ऐसी बुक है जिसको पढ़ के मुझे और अच्छा समझ में आ जाए. तो नोट्स के लिए मैंने आपको वेबसाइट का कुछ रेफरेंस दिया था जहाँ पे आपको सेम लैंग्वेज में जो है इनके आपको टॉपिक वाइज नोट मिल जाएंगे हर एक टॉपिक वाइज जो भी नोट और आपको थ्योरी मिल जाएगी बाकी जो पर्टिकुलर अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो तो आप या तो क्लास के दौरान आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो अपने नहीं, अपने नोट मैम मैम वो तो मैं करता हूँ, जो आप पढ़ाती हैं वो तो मैं लिखता हूँ, वो मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई किताब, आपने कुछ वेबसाइट के नाम बताए थे, तो मैम इट वुड बी ग्रेट अगर आप दोबारा बता दें तो प्लीज. जो मैंने वेबसाइट पे आपको लिंक शेयर किए थे मैं उनको दोबारा एक बार शेयर कर दूंगी वहां पे आपको हर एक टॉपिक के एलिमेंट वाइज आपको मतलब ओके. जो भी एक्सप्लेन किए थे तो वहाँ पे पर्टिकुलर सिंपल लैंग्वेज में आपको डिटेल्स मिल जाएगी मैम देखिए, मैं आपसे क्यों क्यों कह रहा हूँ ये. हाँ हाँ एक तो मुझे ये समझना है, दूसरा अपना मुझे करियर भी बदलना है, तीसरा क्या है मैम कि मुझे दो वेबसाइट्स बनानी है खुद अपने लिए, मतलब वो अपने रेफरेंस के लिए होगी. और मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, वो ऐप के माध्यम ऐप. अच्छा, आप ऐप भी सिखाएंगे बाद में कि नहीं, ये ओनली वेबसाइट के लिए. एक्चुअली मेरे जो पर्टिकुलर है मैं वेबसाइट उसके लिए हूँ अगर आपको ऐप ही सीखना होगा तो आप आगे हमारे कोऑर्डिनेटर से कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे पास ओके. ऐप पे है ग्रेट मैम, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये ग्रेट, तो ऐप बाद में करते हैं.
अभी मुझे दो वेबसाइट्स इसलिए बनानी है, एक तो मुझे खुद सीखने में आ जाएगी, दूसरा उसी वेबसाइट को लेके मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ फंडिंग मिले। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी और से बनाने को बोलूं, मैं खुद ही बनाऊं और फिर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए मैंने कैसी बनाई है, क्या आपको सही लग रही है, क्या आपको अच्छी लग रही है। एंड देन इफ यू से कि हाँ ये इस लायक है कि किसी को दिखाई जा सकती है, तो फिर मैं आगे दिखाऊंगा। तो ये मेरा अभी का उद्देश्य था। तो इसीलिए राजीव देखो मैंने क्या किया, आपको मैं चाहे तो नॉर्मल एचटीएमएल पेज पढ़ा सकती हूँ, आपको कुछ नहीं, इसलिए हमने क्या किया, अपना जो प्रोजेक्ट है वो मैंने फर्स्ट में ही आपको प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट करवाया कि अगर आप सिंपल जी इनको प्रोजेक्ट के थ्रू बनाओगे एलिमेंट्स को, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी कि यूज जी। कहाँ पे हो रही है। अगर अभी आपने इतनी सिंपल पोर्टफोलियो भी बना लिया, तो फिर हाँ हाँ। आप इसी लेआउट पे यूज करके अपनी नॉर्मल वेबसाइट भी बना सकते हैं। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर क्लास के दौरान अगर आपको या इन टॉपिक्स पे कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी अबाउट एनीथिंग इन द लास्ट at the end of the class. Okay, so because the time is limited for this session, so we have to be taking. Okay, यस ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड, oh, ठीक है। ओके। so we will start our session. Okay, so about section हमारा हो गया। तो बेसिकली हमने पिछले सेशन में क्या देखा था, नॉर्मल एचटीएमएल का स्ट्रक्चर देख लिया था कि कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं। हम्म। सो बेसिक बेसिक एलिमेंट्स तो आपको पता होंगे, मैंने आपको बताया था कि कुछ टैग्स और एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या है, आपके सर्च इंजन को हेल्प करते हैं आपके पेज के लेआउट को डिफाइन करने के लिए। फाइन करते हैं, यस यस यस। ओके, सो हमने एक नॉर्मल जो एचटीएमएल पेज चाहिए होता था वो हमने बना लिया था। अब बात थी हमारे पेज को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। अब हमने हर वेबसाइट पे देखे हैं कि उनमें कुछ लिंक्स कंटेन होते हैं, कुछ बटन्स होती हैं जो कि हमें दूसरे पेजेस पे या फिर उनके बारे में कोई जो भी फंक्शन है वो बता रही होती है, ठीक है। यस मैम, ठीक है। तो आज की जो नॉर्मल वेबसाइट जो हमने पिछले सेशन में क्या देखा था, हमने नॉर्मल पैराग्राफ या फिर नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट कैसे लिखते हैं वो सब देख लिया था। अब इसी के अंदर हमें अगर कार्ड्स बनाने हैं या फिर टेबल्स बनाने हैं, तो वो कैसे बनाते हैं वो हम अपने नेक्स्ट उसको देखेंगे। ओके, ओके तो नेक्स्ट हमारा ये अबाउट सेक्शन हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है उसको हम कार्ड्स में डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो ये सब है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये सेक्शन वाला शुरू तो बताया दिया था। अब जो है हम बनाएंगे अपने सेक्शन, उनको कार्ड्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओके मैंने एक सेक्शन है डिजाइन करने के लिए। देखो मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी कि क्लासेस की जरूरत पड़ती है जो हम नॉर्मल कोर्सेज से यूज करते हैं। उसके अंदर हम जो भी डिजाइन करना है उनके लिए हमें क्लासेस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जो भी सेक्शन में बनाऊंगी उनको कुछ क्लास नेम दूंगी। ओके, ओके ओके। सो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, मैं एक सिंपल कार्ड बना रही हूँ जिसके अंदर मेरा टाइटल और कुछ सिंपल पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो कहते हैं हम सेव और अपने सीएसएस पे आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपको नॉर्मल डिजाइन चाहिए, हम अपने यहाँ पे चेक करते हैं हमारा प्रोजेक्ट वाला यहाँ पे टाइटल भी चाहिए था हमें। फिर अभी आप देखोगे तो सिंपल का क्या है, आपको अभी ये प्रॉपर लेआउट में नहीं है और एक ही जगह पे कुछ है। जब हमें क्या है इसे कार्ड की शेप चाहिए, सेक्शन से भी क्लास ऐड करते हैं। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस मेंटेन रहे। तो बॉटम से है जो हर हर जो जितने भी सेक्शन है, मैं क्या चाहती हूँ कि ये जितने भी सेक्शन मेरे बनेंगे उनके बीच में से कुछ गैप मेंटेन हो। तो यहाँ पे मैं मार्जिन लूंगी बॉटम से। ओके। मैम इसी में एक सवाल पूछूंगा बीच में। जैसे मान लीजिए मुझे, जैसे Naukri.com है या TimesJobs.com है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी में। तो अगर
इस तरह की वेबसाइट बनाने की मैं कोशिश करूँ आपके इस कोर्स को बना मतलब करने के बाद, तो क्या मैं बना लूंगा? एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ ऐसे ही। वेबसाइट जो बनने की बात करते हैं तो उसमें आपको दो चीज होता है, एक होता है कि आपको वो डिजाइन करना है, दूसरा आपको वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना है। ओके। ठीक है, तो जब भी हम वेबसाइट की बात करते हैं तो इसमें आपके दो पार्ट आते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो फ्रंट एंड बेसिकली क्या होता है, बेसिकली आपका डिजाइनिंग पार्ट होता है जो भी ठीक है। यूआई यूजर को दिख रहा होता है। ठीक, यस लेकिन यस। वो यूआई वर्क कैसे कर रहा है, सब कुछ वो सारा किसको डिपेंड होता है, आपके बैक एंड पे। ओके। ओके, ठीक तो ठीक है। अगर हाँ, ठीक है, तो अगर हम आप बात कर रहे हो एज ए यूआई आपको फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाना है तो आप बना सकते हो, मैं नहीं कह रही, बट यू हैव टू बी, आपको प्रैक्टिस उसके लिए रेगुलर करनी पड़ेगी सीधे। ओके, आपको गॉट इट। वेबसाइट के उसका लेआउट समझ आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन क्या या फिर कौन सा link कहाँ पे लगना चाहिए। ओके, ओके ओके, ठीक है। ठीक है। अभी मैं इससे सिंपल सा एक बैकग्राउंड कलर के लिए आप कोई सा भी कलर आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसकी हमने विथ जो भी हमारा डिव है उसकी मैंने मिनिमम विथ कर दिया 200। प्लस करेंगे कि जो भी इसके अंदर का कंटेंट है हम्म। वो मेरा इसी बॉक्स के आउट बाहर ना जाए। ठीक है, लाइक इस, और यहाँ पे एक लगाएंगे हम ओवरफ्लो। अगर मेरा जो कंटेंट है वो मेरे हाइट के अगर मेरा जो कार्ड के अंदर जो कंटेंट है वो उससे ज्यादा है तो अभी मैं क्या उसको वो मेरा दिखना नहीं चाहिए, कार्ड से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने देखी इसको सेम हाइट में देखी, ओके। हाइट का भी ऑलमोस्ट आपको अगर आपको फ्लो लेना तो सेम में रखनी चाहिए। तो ये सेम कार्ड। अभी देखो यहाँ पे एक नॉर्मल आपको डिजाइन में दिख रहा होगा, अभी ठीक है। ठीक थोड़ा है। सा ये क्या है, इसमें एक कार्ड की शेप देंगे। अब मैं चेंज करूंगी। अब बैकग्राउंड डार्क होने की वजह से जो अंदर का कंटेंट है उसका कलर हमें नहीं दिख रहा, तो उसको हम व्हाइट में लेते हैं। ओके। और उसके बॉर्डर एरिया थोड़ा सा इसको स्लाइटली ये आपका कर हो जाएगा। और यहाँ से आके जो हमारा मेन सेक्शन है तो जो हम प्लस प्लस ले लेते हैं जिससे कि इसके अंदर भी गैप है। और जो हमने इमेज की हाइट सेट की थी वो जब हमने सीखा उसको हम हाइट मैंने यहाँ से इसलिए रिमूव करी क्योंकि ये क्या है, जो हमारा कंटेनर था अगर मैंने इसको हाइट दी 50 तो ये उस कंटेनर से भी बाहर जा रहा था। अब क्या है, मैंने इसको एक लेआउट दे दिया फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, तो जितनी भी यहाँ पे कंटेनर के अंदर ये जो बॉक्स होगा ये जो आपकी इमेज है उस स्पेस पे आ जाएगी। इसके अंदर आ जाएगा, यस। अगर आप ये वाला लिया तो मेन आपका बेसिकली एक आपका बड़ा कैसा कंटेनर है उसके अंदर आपने दो बॉक्स बनाए हैं। अब इस जी। फर्स्ट वाली बॉक्स में जितना भी स्पेस होगा उसमें आपकी जो इमेज है उसके अंदर ही वो फिट होनी चाहिए। मैम ये कुछ कुछ माइक्रोसॉफ्ट पेंट की तरह नहीं है?
तो देखो, जब हम किसी भी चीजों को पेंट में क्या करते हैं, आप उसको डिजाइन करते हो अपने कोई ना कोई, तो सेम यहाँ पे भी आपको चीजें डिजाइन नहीं करनी है, करनी। लेकिन वो क्या करनी है कि आपको अपनी कोड की हेल्प से कंप्यूटर को समझाना है कि कैसे करना यस, ठीक है, ठीक। है। जो चेंजेस हम यहाँ से वो हम यहाँ भी करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है बेसिकली, अगर आप किसी भी कंटेंट को फ्लेक्स बॉक्स में जब भी लिखते हैं या फ्लेक्स के अंदर, तो ये हम्म, आपके कंटेंट को जितना भी आपके पास साइज अवेलेबल होता है उसके अंदर फिट करने की इसको कोशिश करते हैं। ओके, ओके। इसलिए हम नॉर्मल हाइट विड्थ ना देकर मेनली क्या है फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। सेक्शन बॉटम से मार्जिन जरूर से थोड़ी सी हम पैडिंग डाल देते हैं ताकि वो अंदर की साइड से ही हो। अब ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। अभी भी ये देखो कार्ड पे कंटेंट क्या है, इसके अंदर हमें मतलब ये काफी, अब हम स्टार्ट कर देते तो ये काफी अच्छा वर्क है, तो इसके अंदर भी हम थोड़ी सी स्पेस ऐड करेंगे पहले। अब जैसे ही मैं क्या चाहती हूँ, आपने देखा होगा कुछ कार्ड्स को कई बार क्या करते हैं, जैसे ही आपका माउस आता है वो या तो कलर चेंज करता है या होवर, उस स्टाइल को क्या बोलते हैं हम, एनिमेशन इफेक्ट। ठीक है, तो अभी आपको किसी भी सेक्शन पे माउस होवर तक लाना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डॉट कार्ड। और यहाँ पे देखिए इसको ट्रांसलेशन कितने सेकंड के लिए मुझे। अब देखो जैसे ही स्टार्ट के ऊपर मैं अपना माउस होवर करूंगी, तो ये क्या है, होवर पे मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी है कि इसका कलर मुझे व्हाइट, ब्लू से व्हाइट में चेंज हो जाए। ठीक है। अगर कलर व्हाइट होगा बैकग्राउंड तो हमें पास दिखेगा उसका, तो देखो अब ये क्या है, आपका जो कलर था वो व्हाइट से, सॉरी ब्लू से व्हाइट में चेंज हो गया जैसे ही मेरा माउस आया। जैसे ही माउस रिमूव किया, कर्सर में रिमूव किया, ये आपका चेंज है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, जब आपको ओवर इफेक्ट लेना हो तब आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये विजिबल हो रहा है क्योंकि पिछले हमने पूरा व्हाइट दे दिया था, ये विजिबल था। तो एक पेंट में हमें जो भी डिजाइन, जैसे जो भी आपको दिख रहा हो यहाँ पे मुझे थोड़े से बॉर्डर्स ऐड करने की जरूरत है, या फिर इसको थोड़ा सा राउंड करने की जरूरत है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज होती है। अब हम बात करते हैं एक के अंदर हम कितने बॉर्डर्स हो सकते हैं, तो मैं आपको वो सीधा ले चलती हूँ। ये बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के, या फिर चलो हम यहीं से देखें। अब यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल ऐड किया था, तो ये 20 पिक्सल आपका किस वे में ऐड हुआ था, टॉप, यहाँ पे चार साइड होते हैं हमारे किसी भी कंटेनर के, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इन चारों साइड को अलग से भी सबकी जो रेडियस है वो अलग से चेंज कर सकते हो, वो आपका डिफरेंट शेप क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर रेडियस 20 ना करके हम्म, इसको हम थोड़ा सा ऐसे इसको सीधा देना था, टॉप का अलग से रेडियस और उसके बाद right। अब बॉर्डर का जो राइट पेज है टॉप वो मुझे अलग रखना है और नीचे बॉटम का अलग रखना है, तो मैं सिंपल सा ऐसे, ठीक है। ओके।
तो जब आपको अगर अलग अलग साइज यूज करना हो तो हम सिंपल से ऐसे यूज कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको सबको सेम देना है रेशो तो सिंपल बॉर्डर रेडियस मैंने यूज किया। क्योंकि कई बार क्या होता है जो हम जो शेप डिजाइन करते हैं उसमें हमारी शेप को अलग अलग डायमेंशन की जरूरत है। तो ये चीजें आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उससे समझ आएगा। तो देखो अभी तक ये जो शेप एक नॉर्मल स्क्वायर शेप की ग्राउंडेड कॉर्नर अपनी एक दूसरी शेप बन चुकी है। अगर इन्हीं को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ तो ये अलग शेप क्रिएट कर देगा। तो सपोज मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली और कर्व कर दिया। कार्ड बन के रेडी हो। अब आपको जैसे एक चीज नजर आ रही होगी, मैंने जो भी कंटेंट था वो मेरा कट हो रहा है विजिबल। ठीक है। ये किस वजह से कट हो रहा है कि मैंने इस ये जो कार्ड है इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे फिक्स कर रखी है। और इसके जो ये मैंने ओवरफ्लो हिडन लगाया है इस ओके। ये क्या कर रहा है उसके अंदर के कंटेंट की अगर कंटेंट आपका जो एस्पेक्ट रेशो से बाहर भी जा रहा है तो वो उसको हाइड करके रखेगा। तो अब मैं क्या करूँ, जब भी हम डायनेमिक कंटेंट की सारी चीजें डिजाइन करते हैं तो वहां पे आपको हाइट और विड्थ डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। हाइट और विड्थ हम कब डिफाइन करते हैं जहां पे आपको स्पेसिफिक आपके कंटेंट का साइज पता हो कि वो उससे एक्सपेक्टेशन से बाहर है। तो अगर यहाँ से मैं हाइट और विड्थ रिमूव कर दूं तो आपका जितना भी कंटेंट होगा फ्लेक्स के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके कार्ड को मेंटेन करें। ठीक है। जो विड्थ वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में। सॉरी, यस मैम, हाँ मतलब। हाँ और दूसरा था हमारा बॉर्डर के रेडियस हमने देख लिए थे। और ये था जो हमने नेक्स्ट लाइन थी ये मैंने जब लिखी थी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ये क्या था आपका कि जो बॉर्डर है उसको कैसे डिजाइन करना। तो ये जो 2 पिक्सल थी उसकी विड्थ थी कि आप कितनी मोटाई लेना चाहते हो बॉर्डर को। सॉलिड आपका स्टाइल था कि किस स्टाइल का आप बॉर्डर अपने पे बनाना चाहते हैं। और दूसरा जो था कलर। इन तीनों को हमने एक ही प्रॉपर्टी में ले लिया था। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी यूज होती है अगर आपको यूज को अलग अलग ही यूज करना हो। ठीक है मैम, ठीक है। यहाँ पे कास्ट के सेंसर है और जो होवर प्रॉपर्टी यहाँ पे सॉलिड के अलावा आपके पास और भी स्टाइल होते हैं। एक होता है आपका जो हल्का सा शेडो आपको प्रोवाइड करेगा डबल कौन सी कलर की आप उसी तरह होता है आपका ग्रीन। अलग अलग ये आपके बॉर्डर्स के स्टाइल है डबल आउटलाइन से। जिस तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट में अलग अलग बॉर्डर्स मिलते हैं वैसे यहाँ पे भी आपके हर एक स्टाइल बॉर्डर। और अगर आपको सिंपल स्टाइल यूज करना है ये सारी प्रॉपर्टीज है जिनको आप बॉर्डर स्टाइल के अंदर जाके आप इस एक एक करके इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको देखो डैश है डॉटेड है डबल ग्रीन। ओके। तो ये आपकी बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह आपको हर जितनी भी सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टीज है उन सब के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगी। ये कोई एक स्टाइल एक तरीका नहीं है आपके सीएसएस को डिफाइन करने का। अभी मैंने यहाँ पे जो बैकग्राउंड व्हाइट डिफाइन किया है यही पे सिंपल आप कहीं कहीं पे क्या यूज करोगे उसको बैकग्राउंड कलर। क्योंकि बैकग्राउंड हम बात कर रहे हैं कि एक हमारा कंटेनर है और उसके बैकग्राउंड को हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप क्या फिट करना चाहते हो वेदर के। क्योंकि कहीं पे आपको देखोगे आप उस बैकग्राउंड में कलर होगा कहीं पे इमेज फिल हो सकती है कहीं पे हम अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर यूज कर जी सकते जी। हैं।
अभी यहाँ पे मैंने जो सिंपल कलर यूज किया था, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ना यूज करके, एक होता है, आपको रेडियंट कलर देखा होगा आपने, हम्म। ग्रेडियंट कलर देखे होंगे ना आपने। यस यस, देखा है। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे भी आपको ग्रेडियंट कलर अवेलेबल होता है। तो बैकग्राउंड के अंदर जब भी आपको कलर ग्रेडियंट यूज करना हो, तब हम सिंपल प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ग्रेडियंट आपको यूज करना है, कौन सा ग्रेडियंट कलर, ये दो कलर का आपका मिक्सर हो गया। और दूसरा है आपको, ये जो आपका ग्रेडियंट है, वो कितने डिग्री पे चाहिए। तो 90 यूज करोगे तो ये हाफ हाफ कवर कर लेगा। ओके। तो ये आपकी ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज है। जिस तरह से ये लीनियर ग्रेडियंट है, वैसे ही आपकी एक प्रॉपर्टी होती है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट क्या करता है, बेसिकली वो सर्कल वाइज आपको ग्रेडियंट कलर प्रोवाइड सर्कल करता वाइज करता है, जी हाँ। यस मैम। मैम ये सब तो जो एक और वीडियो सॉफ्टवेयर होता है एफसीपी, उसके अंदर भी ये सब चीजें होती हैं, तो थोड़ा है। बहुत देखिए। हाँ, सीएसएस आपकी बेसिकली इसी चीज के लिए है कि आप उसको कितना भी डिजाइन कर सकते हैं। अब यस। ये जो मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल सीएसएस है। अब अगर आपको स्क्रैच से सीएसएस में सीख रही, तो हम आईटी में यूज करते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या करती है, जो सीएसएस आप लिख रहे हो, वो सीएसएस ऑलरेडी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। आपको क्या है, सिर्फ उनकी क्लास नेम पे यूज करना है, और वो क्या है, आपको ऑटोमेटिकली इसमें एफिशिएंट रहेगी। ठीक है, आपको फिर कोई प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, और आपको सिर्फ डायरेक्ट क्लास यूज करनी है। राइट, ठीक है। तो हम बूटस्ट्रैप आज देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि वो आपको मैनुअली स्क्रैच करने में। ओके। तो यहाँ पे आपको आना है, बूटस्ट्रैप सर्च करना है, लेटेस्ट वर्जन 5.2। जो आपको फर्स्ट में मिलेगा उस पर क्लिक करके वो बूटस्ट्रैप वाले आइकन पे जाना है, गुड ठीक सर, है। यस यस यस। तो यहाँ पे आपको ये जो सीरियल लिंक मिलेगा, आपको इसको कॉपी करना है और अपनी एचटीएमएल वाले लिंक को पेस्ट करना अच्छा। है। यहाँ पे लिंक हम लगाते हैं, ये टाइप करके इसमें हमने पेस्ट। अब यहाँ पे जब आप डॉक्स के अंदर आओगे, तो जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज है आपकी सीएसएस की, आपको इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। ठीक है। जो ब्रेक पॉइंट है ये क्या डिफाइन करती है, मैंने आपको बताया था कि हम जो भी कंटेंट डिजाइन करते हैं, वो हर डिवाइस का अलग अलग साइज होता है। तो अगर कोई भी डेवलपर अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग डिजाइन बना रहा है, तो अगर वो दूसरे स्क्रीन पे काम करेगा, तो हो सकता है वो डिजाइन स्क्रीन पे फट जाए, यानी कि उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट ना बैठे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ यूजर चेंज कर ब्रेक पॉइंट यूज करते हैं कि आपका जो डिजाइन है, वो चाहे लार्ज डिवाइस हो या स्मॉल डिवाइस हो, मीडियम हो, उन सब पे सेम दे। तो ये आपका स्क्रीन साइज को डिफाइन करता है। जिसके बाद आते हैं हमारे कंटेनर्स। कंटेनर्स में देखो, अब ये जब हम कंटेनर की बात करेंगे, तो हमारा मेन ये वाला जो सेक्शन है, ये क्या आ गया आपका, एक कंटेनर हो गया। अब ये कंटेनर क्या हो सकता है, या तो एक मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, या लैपटॉप या मैकबुक, सबका जो स्क्रीन साइज है वो अलग अलग होगा। तो देखो, ये जो साइज है एक्स्ट्रा, और उन साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनकी क्लास में है। तो हम जब भी अपनी सीएसएस प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपने पेज को डिजाइन करने के लिए, तो उनके अंदर ये सारे एसएम और एमडी यूज कर देते हैं कि जो भी आपका कंटेंट है वो साइज, स्क्रीन साइज के हिसाब से फिट हो। अगर अभी मैं यहाँ पे कुछ कंटेनर है, यहाँ पे मैंने क्लास, कंटेनर फ्लड क्या करता है, अब आप तो ये फर्क पड़ता है कि आपके पास कौन सा स्क्रीन साइज है। जो भी स्क्रीन साइज अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आपके कंटेंट को फिट करना है। मेन पे अप्लाई किया था।
ये कंटेनर फिल्ड है, ऑलरेडी सब क्लासेस है जिसके पास सारी क्लासेस अवेलेबल होती है, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, एक्सेल, ठीक है। तो इसमें देखो हर क्लास के हिसाब से वेरिएबल बना रखा है, तो ये जो भी स्क्रीन साइज पे जाएगा अपने आप उसके कंटेंट को एडजस्ट करता जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि अभी हमने सिर्फ कंटेंट पे क्लास अप्लाई किया, तो आप देखोगे कि इसने कंटेंट को अपने आप उसी अकॉर्डिंग छोटा कर दिया, अलग आपने उसमें एडजस्ट कर दिया, ठीक है। हम्म। इसके अभी मैंने क्या किया, स्पेस को छोटा कर दिया, तो इसमें क्या किया, मेरे कंटेंट को अपने आप इसमें एडजस्ट कर दिया, कंटेंट मेरा बाहर नहीं जा रहा है इस डिप से। अभी हमने जो कंटेनर फ्लड क्लास अप्लाई की थी उससे अपने मेन सेक्शन पे अप्लाई किया था, इस मेन क्लास पे। तो हेडर को छोड़ के मेरा जो मेन सेक्शन है एलिमेंट था, वो क्या है, ऑटो एडजस्ट हो गया। यहाँ पे जितने भी फ्लोर्स के हिसाब से होंगे ये अपने आप आपके साइज को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है राजीव? नहीं 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 मैम। अब यही प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे कार्ड्स की यूज की थी, अब अगर मैं इस कार्ड्स को ऑलरेडी जो सीएसएस हमने बूटस्ट्रैप में इंक्लूड की है, ये ऑलरेडी वहाँ पे लोड है। देखो अब आपको ये जो कार्ड का स्टाइल दिख रहा है, अब आपको अलग से डिजाइन करने की जरूरत है, डायरेक्ट हमने कार्ड लिखा और ये ऑलरेडी क्या है आपके कार्ड को। हम्म। ठीक है, इसमें क्या किया, ऑटोमेटिकली कार्ड बना दिया विदाउट आपकी क्लास। तो आपको सिर्फ क्या करना था, यूज करना था कार्ड का नेम यूज करना। इसलिए मैंने आपको शुरू में कुछ सीएसएस दिखाई थी, जो भी क्लासेस आप यूज करोगे आपको उसका नाम पता होना चाहिए या फिर वहाँ पे वो कब यूज करना है। ओके, ठीक ठीक है ओके। यहाँ से देखो मैंने शुरू से शुरू कर दी, बट फिर भी आपका कार्ड इंक्लूडेड। अब आपको इस कार्ड के कुछ कलर्स देने हैं, हम्म। वो बता सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो लिखूंगी प्राइमरी, ये आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है, क्योंकि क्या है आपके कार्ड के अंदर कलर ऐड। और सपोज अगर आपको कार्ड नहीं भी डिजाइन करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपल लेआउट भी मिलता है आपके कार्ड के लिए, तो सिंपल आपको क्या करना है, कॉपी करो, तो यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या है, आपको ऑलरेडी कार्ड डिजाइन मिल रहा है, सिर्फ आपको क्या है अपना कॉन्टेंट चेंज करना है, जो भी कॉन्टेंट आप अपने उसके लिए रखना चाहते हैं। तो इसलिए क्या देखो, प्रॉपर एक कार्ड आपको बना के दे दिया। ठीक है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी यहाँ पे अपनी इमेज अगर आपके पास अवेलेबल है, इसका पास डाउनलोड। और दूसरा यूज करने का एक फायदा और होता है, ये ऑलरेडी आपको जितनी भी क्लासेस मिलेंगी उसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिव मिलेंगी। ठीक है, ओके। अब मैं स्टार्ट को इंतजार करती हूँ।
यहाँ पे सिंपल सा हम अपने बूटस्ट्रैप के लिए। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे सिंपल से ये जो कार्ड दिख रहे हैं मुझे, हम्म। इन तीनों को मुझे सिंपल वर्टिकल डायरेक्शन में लाना है, तो क्या यूज करना होगा मुझे? फ्लेक्स डायरेक्शन कौन सी होगी मेरी, कॉलम या रो? सॉरी, क्या इन तीनों को क्या करना है? इन तीनों को सिंपल एक स्ट्रेट डायरेक्शन में लाना है मुझे। रो में हॉरिजॉन्टली ये हॉरिजॉन्टली की वर्टिकली? वर्टिकल, फिर तो हम रो जैसे फिर तो हॉरिजॉन्टल और कॉलम 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 आई गेस। रो में फिक्स करना है ना हमें। ये तो कॉलम, रो तो हॉरिजॉन्टली होती है कॉलम में ना। तो यस, कॉलम में तो यहाँ पे जो आपका फ्लेक्स डायरेक्शन यूज होगा वो रॉ होगा। अच्छा। ओके। ओके। अच्छा ठीक है। तो अभी ये जो तीनों डिश है आपकी अलग अलग सेक्शन के अंदर है, एक सेक्शन के अंदर रैप नहीं है, तो पहले हम एक सेक्शन के अंदर रैप करेंगे। ठीक है। लाइक इसको एक कंटेनर के अंदर फिट करना है, उस कंटेनर के अंदर हम इनकी डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। तो हमें इजली वॉल्यूम और इन तीनों पार्ट और जो इसमें फ्लेक्स यूज कर रहे थे यहाँ पे फ्लेक्स, जो फ्लेक्स रैप है वो क्या करेगा, अगर आपके जो पार्ट्स है वो कंटेनर से बाहर जा रहे हैं तो उसको अपने आप सिक्योर करेगा। ठीक है। और फ्लेक्स रो है तो इसकी डायरेक्शन डिफाइन। तो ये ऑलरेडी हम एक इसमें आ चुके हैं, इसमें हमें हल्का सा गैप चाहिए। तो ये और गैप ना देकर अगर हम देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस डिफरेंस ऑलरेडी है, जो ऐड हो, जो स्पेस होगा हमारे पास, उसके स्टार्टिंग और एंडिंग होगा। ठीक है। नॉर्मल हमारी कार्ड्स और उनकी प्रॉपर्टी थी। अब हम अपने इस पर देख लेते हैं कि हमें डिजाइन बनाना है। तो मैंने इसको ओपन करके नहीं देखा, हमें किस तरह करना है। यहाँ पे इसमें कार्ड्स जो लिए हैं ये, अच्छा यहाँ पे क्या चीज हो रही है, जैसे हम ओवर करेंगे थोड़ी सी क्या है, देखो आपको ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपको स्लाइड में तक दिख रहा है। हाँ, तो ये आपका ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी क्लास के सिंपल डाल सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा टेबल, ठीक है। अब टेबल, टेबल मैंने आपको बताया था ना शायद पिछले फर्स्ट क्लास में। टेबल आपने बहुत पहले बताया था, यस। ओके। मैं आपको, हाँ, लिखा है। तो आपने मैनुअल कोर्स देखा था बूटस्ट्रैप की क्लास का, अगर आपको टेबल यूज करना है यहाँ पे आप आएंगे कुछ सेक्शन में। बूटस्ट्रैप क्या करेंगे, ये आपकी ऑलरेडी
इसको फिक्स बनाते हैं और ये जो है फिर यहाँ पे आपको जितने कॉलम रखना है आप इस हिसाब से उतने कॉलम लिख सकते हैं। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट रो होता है वो आपका बेसिकली फर्स्ट कॉलम को इंडिकेट करता है। रो रखते हैं, ये दो ही कॉलम लिए दूसरे रो की जगह। फर्स्ट अगर आपका रेडी है दूसरे रो में ओके हमें सिर्फ दो ही कॉलम फर्स्ट रो के अंदर भी आपको इसकी वैल्यू ओके। ये जो रोज है आपकी मतलब फर्स्ट हेडिंग के लिए आपका फर्स्ट रो सेकंड के लिए आपका सेकंड कॉलम उसी के अंदर ही आपकी वैल्यू। अब ये टेबल को भी हम डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको इसमें बॉर्डर्स चाहिए फेवरेट कलर चाहिए सिंपल आपको वहाँ पे चूज करना होगा। बैकग्राउंड के लिए हम बीजी बैकग्राउंड के लिए आपको बीजी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। चलेगा तो टेबल के अंदर इसको क्लास करते हैं। यहाँ पे हर टेबल की देखो आपको अलग अलग क्लासेस है जो ये जितने कलर्स हैं उसके हाँ पर्टिकुलर यहाँ पे उनकी क्लासेस को नेम है तो मैम, आपको कौन से। हाँ ये क्या है प्राइमरी सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? टाइप्स ये आपके कलर्स नेम है। प्राइमरी सक्सेस रेंजर ये सारे क्या है उनके कलर्स नेम है जिस भी कलर का आपको टेबल अप्लाई करना है अच्छा सिंपल अच्छा। आपको टेबल के साथ उस कलर का नेम यूज करना अच्छा अच्छा ठीक। है। तो जैसे हम ब्लैक व्हाइट बोलते हैं वैसे कलर के नाम है ये यहाँ पर, हाँ राइट? यहाँ कलर के नाम है इसको बीच से ओके। मतलब इसमें कुछ लिमिटेड कलर्स है जो अवेलेबल है यहाँ पे आपको बीच से आपको मिलेंगे इसके अलावा अगर आपको और कोई कलर यूज करना है तो अगर आप उस के अंदर ही इस क्लास को यूज करके सीएसएस प्रॉपर्टी में जाके वो कलर को चेंज कर सकते ठीक है ठीक है। हैं।
सो सिंपल टेबल आपने देख लिया था दूसरी तरह से। अभी जो हमने देखा था यहाँ पे देखो उसमें लाइनिंग नहीं थी, तो अगर आपको विद विदाउट बॉर्डर स्ट्रिप कॉलम चाहिए तो टेबल स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्लासेस के नेम है जो कि आप अपने टेबल के अंदर यूज। तो अब बेसिकली आपको क्या है कि ये क्लास को यूज करना होगा और उसके बाद वो जो CSS प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो। लेकिन आपको पूरा अगर HTML एलिमेंट में लिखना है तो वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली इसको टाइप कर सकते हैं। ओके। क्रिएटिव हो गया था, अब हमारा होगा था फॉर्म। ठीक है, पहले तो नीचे बता देते हैं। अब हमें फॉर्म बनाना है। और अगर आप स्क्रैच से फॉर्म बनाओगे तो इसका भी कोड आपको दिखा देंगे, लेकिन अगर आपको सिंपल सा फॉर्म यहाँ से यूज करना तो वो आपको भी यहाँ पे मिल जाए। वहाँ पे लोग वो फॉर्म अपने दूसरी कॉपी कर लो। फॉर्म का लेआउट इसमें बना दिया है ऑलरेडी। तो नीचे क्या है, आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको इनपुट नेम चाहिए और जो आपको वैल्यूज चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ओके। आपको यहाँ पे सिर्फ कंटेंट चेंज करना है और एक प्री डिफाइंड लेआउट आपको मिल जाए। ओके। अब इसको अगर आपको स्पेसिफिक अलग से डिजाइन करना है तो हमें अपने कॉन्टेक्ट के अंदर जो जो एलिमेंट चाहिए थे हम सिर्फ बोल रखते हैं, बाकी सब रिमूव। तो हमें चाहिए नेम, ईमेल और मैसेज। ओके। तो तीन ही इनपुट की आवश्यकता है, बाकी को हम डिजाइन करें। यहाँ पे जो आपको कॉल दिख रहे हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कॉल्स आप जो आपने रो के अंदर जो हम अभी तक अपने कंटेनर की हाइट और विड्थ से उनका साइज डिफाइन कर रहे हैं, तो कॉलम क्या करते हैं उस कंटेनर के अंदर आपको कितने मैक्सिमम इनपुट्स को वो कितने मैक्सिमम बॉक्सेस को फिट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उनको एडजस्ट करें। तो अब यहाँ फॉर्म को क्या है, एक रॉ बनाया। अब यहाँ पे मैंने कॉल MD12 लिखा है, तो 12 का मतलब है बेसिकली उसमें एक ही सिंगल आपका बॉक्स अवेलेबल होगा। ठीक है। ठीक है, फुल लेआउट में अगर आपको चाहिए। अब ये चीज होगी, अगर यही मैं अगर यहाँ पे 6 6 यूज करती तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता। तो जो भी मतलब अगर आप ऐसे यूज करोगे इवन नंबर्स में होते हैं आपके 2 4 6 8 12 10 12। ओके, ठीक है। मतलब जितने भी नंबर होते हैं आप 1 to 12 इसमें चलते हैं। कॉल को आपको डिफाइन करने के अब आप इसको आपके रॉ के अंदर जिस हिसाब से डिफाइन करते हैं आपका जो कॉलम का साइज है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ओके। अब हम अपने फॉर्म की विस्तृत थोड़ा सा स्टाइल करेंगे।
अच्छा, अगर आप इस फॉर्म को देखें तो इस फॉर्म में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो क्या उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? यस। हाँ, इस गिफ्ट को डिजाइन करने के लिए कौन सी तीन आपको प्रॉपर्टी को नेम बता, तो तीन भी नेक्स्ट। आई कांट से राइट नाउ प्रॉपर्टी तो। लाइक आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है फॉर्म, इसमें हाँ। बेसिकली ये आपको एक कंटेनर दिख रहा है जहाँ पे आपको स्लाइड का कर्व दिख रहा है, राउंड कलर चेंज दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है, अच्छा, ये हाँ जो वही तो आपने देखिए, आपने कलर्स बदले अभी। और जो आपने पहले एक राउंड किया था, अभी आपने उसको बॉक्स में कर दिया है, कार्ड में कर दिया है, पोस्ट कार्ड टाइप का हो गया है ये। तो और उन्होंने प्रॉपर्टी के नेम पूछ रही कि आपको तीन प्रॉपर्टी के नेम बता सकते हैं आप? तीन, मतलब एक तो आप, आई थिंक यू हैव डिजाइंड, आपने डिजाइन किया है, कलर्स को बदला है, कॉलम्स एंड रोज को इस्तेमाल किया है। दैट्स व्हाट आई कैन से, जो मुझे समझ में भी आया। नहीं। हाँ, मैं वही कहती कि किसी भी डिजाइन को ना चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते ना कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। पैडिंग। पैडिंग जो है हमें बॉक्स के अंदर से थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, उसके लिए हम पैडिंग लेंगे। बॉर्डर रेडियस जो मैंने ऐड किया 26 है, उसको स्लाइटली राउंड बनाने के लिए। मैम तो जो मैंने जवाब दिया वो गलत था कि सही था, क्या था वो? ठीक है, आपने उसको सही थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की, बट उससे आप अगर ध्यान से देखें तो आपको चीजें ध्यान से दिख रही थी उसमें। एक तो राउंड आप सिंपली दिख रहा था, हाँ, कॉर्नर उसके राउंड थे, रो राउंड था, ऑफ यस। फेस बोल सकते थे। अच्छा, हाँ कॉर्नर्स, मैंने राउंड कहा था लेकिन मैंने राउंड किसी और सेंस में बोल दिया था। हाँ ठीक है, राउंड। हाँ, हाँ मैं गॉट वही इट। बस आपने वही करके आपने आपको ये तो पूछा था, लेकिन उस प्रॉपर्टी का नेम क्या था मैं आपको नहीं पूछा चाह रही थी। आप मेरा नेम अच्छा। सिंपल क्वेश्चन था कि आप ओके। क्या क्या इसके अंदर यूज कर सकते हैं, लाइक बैकग्राउंड, पैडिंग, बॉर्डर बैकग्राउंड, रेडियस यस या यस। फिर डिफाइन। आपने सिंपल लैंग्वेज में बोला कि हम ये चेंजेस हैं। हाँ मैंने सिंपल लैंग्वेज बोला, हाँ। यस यस। ठीक है मैम। तो थोड़ी सी इसको जैसा करने के लिए दूसरी दौड़ कर सकते हैं। सेक्शन में बात करते हैं क्योंकि उनका कलर हमें अंदर दूसरा देना है। ये क्या है, बूटस्ट्रैप की क्लास है। बॉडी, बॉडी मतलब आपका बॉडी पे जो भी कलर है, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है वाइट, वो ले लीजिएगा उसके अंदर। ठीक है, तो टेक्स्ट चाहिए हमें सेम डार्क फॉर्म पे। अब वो जो चीज हमने सेम वहाँ राउंड की थी हम उसको यहाँ भी राउंड कर सकते हैं। ये आपकी ये जो क्लासेस में HTML के अंदर यहाँ पे लिख रही है, ये हम्म। आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है। जो P है आपका पैडिंग के लिए, जो M है वो मार्जिन के ओके। लिए। और एक चीज और नोटिस करना है कि इसको रैप करना है सेक्शन के अंदर, क्योंकि सेक्शन के अंदर हमने ऑलरेडी क्लासेस डिफाइन कर रखी है, उस हिसाब से इसको स्पेस को एडजस्ट कर पाता हूँ। और यहाँ पे दे दिया है हम ID। अब ये जो ID थी मैंने उसका आपको पर्पस बता दिया था ना कि हमने ID के लिए जो हमारे एंकर लिंक्स उसके साथ हमारा जो सेक्शन है वो कनेक्टेड। हम्म। सपोज अब यहाँ से हम कॉन्टेक्ट करें, ओके।
वापस स्क्रॉल कीजिए। तो अब आपका पेज चाहे कितना भी स्क्रॉल डाउन होगा, तो डायरेक्टली यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। अबाउट दिस में अबाउट सेक्शन डाल दिया, प्रोजेक्ट हम्म हम्म, पेज में आपका स्पेस और कॉन्टेक्ट में आपका। और तो आज के लिए इतना ही। ठीक अभी है इसमें बहुत डिजाइनिंग का काम बाकी है। आप ठीक है। पहले से अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करना कि पेज जितना हमारा बना है उतना आप भी डिजाइन करो। यस श्योर श्योर पक्का। और मेक श्योर कि डिजाइनिंग थोड़ी है ना, वो बिल्कुल सेम ना ठीक है मैम ठीक है। हो। ओके। ओके। सो एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्लास? नो नो नॉट नाउ, मे बी लेटर नेक्स्ट क्लास। practice these topics, and after that we will continue the next session. Okay, so shall we end the session? आई एम सॉरी हम क्या बोला आपने? मैंने टाइम हो गया है, तो यस we यस end the यस session. यस या We will continue. ओके Okay, थैंक यू। thank ओके you. ओके बाय।